Good morning 11th standard, and today we are going to discuss about the back exercise question of chapter 3 which we have completed in previous classes, and one by one I am going to discuss a question with you which you have to see very carefully and listen the answers also, because there are few theoretical questions, so there is no need to write down the answer in the notebook, no need to write down the answer in my copy. So you have to complete these questions which I am going to discuss in today's class in your chemistry register. Okay, so the first question here it is. Beta, first of all, please all of you open your NCERT book and come to the back exercise questions. All right, so the first one is, what is the basic theme of organization in the periodic table? ठीक है बेटा, तो उन्होंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल जो बना है उसकी बेसिक थीम क्या है. सो ऑब्वियसली द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल इज सिंपल वन, टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स. यही था कि मेन पर्पज ये था कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को वो स्टडी कर पाए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज various elements that have been divided into different groups, and this has made the study of elements simple, because we can say that their properties are now studied in the form of group में पढ़ते हैं आप उनकी, so that rather than individual. ठीक है, so that was the basic theme of organization of elements in periodic table. Next question आ जाता है, which important property did Mendeleev use to classify elements in his periodic table and did he stick to that? So सभी को पता है Mendeleev used atomic weight as the basis of classification of elements in the periodic table, and he arranged the elements in the order of increasing atomic weights, grouping together elements with similar properties. हाँ, अब अगला पार्ट आ जाता है कि whether he stick to that. So no, he was not completely stick to that. He ignored the order of atomic weights and placed the element with similar properties together. For example, iodine, which is having a lower atomic weight than tellurium, was placed in group 7 along with फ्लोरीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. तो आयोडीन को वहां पे रखना नहीं था, बट उन्होंने अरेंज कर दिया बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में आइए बेटा, इन्हें मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी अपनी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस टू अप्रोच बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड दी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. तो होपफुली ये तो आप सभी लोगों को पता होगा दैट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन द atomic weights, whereas modern periodic law is basically is based on the atomic number. इनके laws ही अलग अलग थे. Mendeleev periodic law that says that the properties of the elements are periodic functions of their atomic weights, whereas modern periodic law that states the properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई दैट सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट्स. अब यहाँ से मैं नोटबुक में करना स्टार्ट करती हूँ, मेरे को दिखाना है आप लोगों को, तो आप अपनी बुक खोल के रखिएगा, मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिक्टेट करते चलूंगी. ठीक है, इज इट ओके? फाइन. सो विद एवरीवन, तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि वो कह रहा है कि क्वांटम नंबर के बेसिस पे, आप लोगों को मालूम ही है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, these SPDF आर द क्वांटम नंबर्स. ठीक है, तो उनके बेसिस पे जस्टिफाई करना है सिक्स्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में 32 एलिमेंट्स आने चाहिए. तो हमें ये पता है कि ईच पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है विद फिलिंग ऑफ न्यू प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, और 10 सिक्स्थ पीरियड जो होगा वो 6s से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू टिल फिलिंग ऑफ 7th एनर्जी लेवल. भाई 6s से स्टार्ट होगा और जब तक कि 7th
क्वांटम नंबर 7 क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल नहीं आ जाता तब तक चलेगा. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑफबार 6s भरती है, देन आफ्टर दैट 4f फिल होगी, फिर 5d आएगी, फिर 6p आएगी. बेटा ऑफबार भी लगानी है. आप ये नहीं कहोगे 6s 6p 6d 6f. ना 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 ना, क्या भरेगी 6s, उसके बाद ऑफबार के हायर एनर्जी लोअर टू हायर एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, फिर 4f, फिर 5d, देन 6p, और जो नेक्स्ट आने वाली है वो 7s है. सो वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस वन. ठीक है, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि 7th एनर्जी लेवल स्टार्ट हो चुका है. सो अब देखिए 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4f के अंदर 14 आ सकते हैं, d है तो 10 आ सकते हैं, और p है तो 6. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन एंटर इन दिस energy level, sixth period energy level, that can be 32 electrons. If 32 electrons enter, then it means therefore sixth period has 32 elements. ठीक है जी, यही होगा. Okay, so this is the 4th number question. Now we come up to the 5th. In terms of, अब मैं बुक नहीं निकाल रही बार बार, ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग अपनी बुक से देखिए. In terms of period and group, where would you locate the element with atomic number 114? ठीक है, तो 114 के लिए जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर बहुत बड़ा एटॉमिक नंबर है, then instead of writing the whole or a complete electronic configuration, we used to write down the nearest noble gas configuration. So उसको लिख दो सिर्फ radon, which is having atomic number 86. Now move on further. So 5 after that radon configuration, 5f14 will filled up, 6d10, 7s2 and 6p2. ठीक है, this is the last one, 7s2 and 6p2. Now बेटा मेरी बात सुनो, सबसे हायर जो पीरियड आया है वो 7th आया है. सो इसका मतलब एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करेगा, आउटर मोस्ट में 7s2 6p2 आ रहा है, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 7. ठीक है, अब आउटर मोस्ट में 7s2 6p2 माने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और आखिरी जो आ रहा है वो 6p पे आ रहा है. तो p के लिए हम हमेशा क्या ऐड ऑन कर देते हैं, 10 ऐड ऑन कर देते हैं. तो 10 + 4 कितना हो गया, 14. इट मीन्स द ग्रुप इज 14. यहाँ पे क्लियर हुआ. 7s2 6p2 इज द आउटर मोस्ट. इट मीन्स पीरियड बिलोंग करेगा 7th. ग्रुप होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल दैट फिल्ड अप 4. सो 10 + 4 इज इक्वल्स टू 14. सो ग्रुप बिलोंग हो रहा है 14, और ब्लॉक हो रहा है आपका आउटर मोस्ट में p ब्लॉक है. सो ब्लॉक विल बी p1. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप. तो इसका एटॉमिक नंबर निकालना है. तो मुझे पता है ग्रुप 17 जो होता है वो हेलोजेंस का होता है. हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np5 है. सो 3rd पीरियड है. सो 3s2 3p5 विल बी द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट. ये हो जाएगा 3s2 3p5. ना कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ओपन कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ये छोटा था इसलिए हमने पूरा लिख दिया, अदरवाइज हम यूज करते नोबल गैस एलिमेंट का यहाँ पे. तो ये अगर टोटल करो तो अब जितने कितने हो रहे हैं, 2 + 2 + 6 10 10 + 2 12 + 5 17. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 17. इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज 17. तो एलिमेंट क्या हो गया, क्लोरीन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एलिमेंट, 7th नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दैट वी आर गोइंग टू सी. विच एलिमेंट डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लैबोरेटरी और सी बॉक्स ग्रुप. तो बेटा ये एक सिंपल से लॉरेंस बर्कली ने बर्कीलियम एलिमेंट दिया गया था उनके नाम पे, एंड इट्स सिंबल इज BK. और सी बॉक्स ग्रुप ने सी बोर्जियम नाम दिया था उनके एलिमेंट पे जिसपे वो काम कर रहे थे, एंड इट्स एलिमेंट सिंबल इज SG. ठीक है, नेक्स्ट इज योर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दैट आई हैवंट अगेन मेंशन्ड इन इट. Why do elements in same group have similar physical and chemical properties? So this is again very easy question, because the elements in the same group have similar valence shell electronic configuration, so they have similar physical and chemical property. Similarly, question number 9,
what does atomic radius or ionic radius mean to you? This we have already done in our previous lectures, so ये मैं नहीं कराऊंगी. How do atomic radii vary in a period and in a group? How do you explain the variation? ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम नहीं करेंगे. अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11. What do you understand by isoelectronic species? And name the species which will be isoelectronic with each of the following atom or ion, जैसे कि fluoride, argon, Mg2 positive, magnesium ion and rubidium ion. ठीक है, तो अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनका की सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होता है. माने न्यूक्लियर चार्ज कैन बी वैरिड बट दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल सेम. ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो, फ्लोरीन पे 9 है और एक नेगेटिव, तो 9 + 1 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोराइड में. तो ऐसे ही नाइट्राइड ले लो, नाइट्रोजन इज हैविंग 7 और 3 नेगेटिव, माने 3 इलेक्ट्रॉन और एंटर हुए, 7 + 3 10 सेम इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ऑक्सीजन इज हैविंग 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट हुए, 8 + 2 10, सो इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज नियॉन इज हैविंग 10 + 0, माने कोई एंटर नहीं होगा, नोबल गैस है. So that is also having a fluoride configuration, electronic configuration, and so we can say these are the isoelectronic species. Argon के केस में total number of electrons 18 है. So ऐसे ही P3 negative, K positive, Ca2 positive, ये सारे isoelectronic है. किसके साथ? आर्गन के साथ. Mg2 positive में 12 होते हैं और 2 दे दिए, तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. सिमिलरली ऑक्साइड O2 नेगेटिव, यहाँ दिखा दिया 10 ही है इसमें भी. नाइट्राइट के अंदर भी 10 है. सोडियम पॉजिटिव, ये भी 10 हो जाएगा, 11 - 1. ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ Mg2 पॉजिटिव. Rb पॉजिटिव, इट इज हैविंग 37 कॉन्फ़िगरेशन, एक गया -1, तो 36 बचे. तो ब्रोमाइड इज ऑल्सो शोइंग सिमिलर, Br नेगेटिव, 35 + 1 एक आ गया, तो Br नेगेटिव. क्रिप्टन, दैट इज अ नोबल गैस, 36, सो इट इज ऑल्सो शोइंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाता है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव. तो ये बेटा इसमें भी वही है कि ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं. कॉमन पूछा था आप लोगों को इसमें कि क्या कॉमन है, तो दीज आर ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बिकॉज ईच वन ऑफ दीज कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक आयोनिक रेडियस. तो एक चीज बता दूं यहाँ पे, ये याद रखना दैट आयोनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस डिक्रीज विद, बेटा इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, विद इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. फाइन, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो N3 नेगेटिव, देन आयनिक रेडियाई सबसे पहले अरेंज ऐसे होगा, O2 नेगेटिव, देन आएगा तुम्हारा F नेगेटिव, देन आएगा Na पॉजिटिव, देन आएगा Mg2 पॉजिटिव और देन Al3 पॉजिटिव. ठीक है, ये बनेगा. तो अगर हम इनको, ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. तो आयनिक रेडियाई कैसे बनेगा? आयनिक रेडियाई बन जाएगा N3 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव. सबसे ज्यादा N3 नेगेटिव का, उल्टा हो गया ना, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव. ठीक है, तो ये बना. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई केटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम. ये हम कर चुके हैं, मैं नहीं कराऊंगी. सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट while defining ionization and enthalpy and electron gain enthalpy, this we have done. So ये नहीं करेंगे. Yes, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर सिर्फ. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम
इज -2.18 इंटू 10 की -18 जूल है। तो कैलकुलेट करनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। फॉर्मूला होते हैं बेटा, आप याद है, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज ई एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी शेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। तो इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, तो 0 माइनस E1 मीन्स E1 की वैल्यू हमें गिवन है, तो माइनस 2.18 इंटू 10 की -18 जूल विच इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा। अब आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करना हाइड्रोजन एटम की। तो पर मोल के लिए जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है मल्टीप्लाइड बाय 6 पॉइंट, बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, सो इट इज 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 1000 किलो जूल पर मोल। सो आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट दिस मच। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट वन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स actual ionization energies are in order: lithium, then boron, beryllium, carbon, oxygen, nitrogen, fluorine, neon। सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। स्टिल beryllium has higher delta change in ionization enthalpy than boron। Why? तो बेटा सीधी सी बात है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और बोरोन का होता है 1s2 2s2 2p1। तो ऑब्वियसली 2s में से 2s जो होती है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है, सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू take out the electron from 2s orbital comparatively to the 2p orbital, and that's why because of its greater penetration and more strongly attracted by nucleus, so more amount of energy is required to take the electron from 2s orbital rather than 2p orbital. That's why ionization enthalpy of beryllium is higher than boron। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हैज लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। सो ऑब्वियसली इसमें भी बेटा अगर आप देखो तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, मैं आउटर मोस्ट कर रही हूँ 2p3, तो ये नाइट्रोजन का बना, जबकि ऑक्सीजन के केस में इट इज 1s2 2s2 2p4, तो 2p4 1 2 सॉरी बच्चे, मैंने 3 की जगह 4 ऑर्बिटल्स बना दी थी, 1 2 3 और ये आ गया 4, तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, इसके अंदर p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है ना, और जबकि ऑक्सीजन के केस में ना तो ये हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होती हैं, that is more stable comparatively to the incompletely filled orbital. So this one is more stable than comparatively to this orbital, and that's why more energy is required to take the electron from half filled comparatively to the incompletely filled orbital. ठीक है। So this is all about for today, and you have to do all these questions today in your notebook till the question number 20, because rest of the questions also we have done, and okay, thank you.